Good evening, everyone, and a very warm welcome to AMA today. I'm Malika, and I'm a member of the PR committee. And we have with us Mr. Vedang Dave today for a very special book launch of his. And Mr. Vedang Dave has over 19 years of diverse experience in training, learning, and organizational development across industries in India, UK, and UAE. He is an expert in content development, coaching, counseling, innovation, operations, retention, and customer service. He has a proven track record of driving high performance standards, sales, and service excellence through innovative learning interventions. He has specialized in compliance, team people management, people development, performance, and automation. Mr. Dave holds key leadership roles at renowned organizations like U Broadband, Vodafone India, Reliance Jio Infocom, McKinsey, KPMG, and Vodafone SR Limited. He has contributed significantly to national sales training, master training, and leadership and organizational development. He has to his kitty notable achievements. There are many extracurricular activities and CSR initiatives that reflect upon his diverse interests and contributions beyond the professional realm. Today, he will be speaking to us and telling us about forensic graphology, clinical hypnotherapy, and neuro-linguistic programming. We take this opportunity to welcome him today at AMA. Mr. Dave has also written a book on the topic that he'll be speaking on, which is Graphology by Vedang Dave. And today at AMA, we will launch this book as well. Hi, good evening, everyone. Am I audible to the last row? Great. I guess we'll go with Hindi. It'll be suitable to all of us. And second, it is our मातृभाषा, तो उस पे थोड़ा हम रहेंगे. If in case I change the track, तो मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं वापस हिंदी पे आ जाऊँगा. मुझे हमेशा ये लगता है कि जब भी कोई ऐसा सेशन होता है, ओपन फॉरम्स होती है, दिस इज द बेस्ट टाइम. बेस्ट टाइम इसलिए है कि एटलीस्ट कहीं तो कोई खुशामद करता है. सो दिस इज द टाइम व्हेन पीपल टॉक सो मच गुड अबाउट, सो दिस बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स. अभी बुक अनवेल के लिए कल मेरे जीजू यहाँ पे बैठे हैं, तो हम लोग बुक्स पैक कर रहे थे. तो बुक्स पैक कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि सब गेस्ट वगैरह का उनको बोल दिया है अपने, एंड हैव यू इनवाइटेड दैम, सबको इनविटेशन भेज दिया, एड्रेस भेज दिया, टाइमिंग्स वगैरह भेज दिया है कि नहीं भेज दिया है. बोला हाँ हो गया. मेरे हिसाब से, एज आई सेड, मेरे हिसाब से चीफ गेस्ट मेरे लिए वही है who have contributed in my life, right? So there are a lot of us who are here. Definitely आप लोग यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए, you invested your energy. तो मैं यही चाहूँगा कि जितना भी टाइम हमारे पास है हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, हम उसको अच्छे से कुछ नया आज सीखने के लिए इन्वेस्ट करें टाइम. सो दैट इज़ माई पर्पस. सो उससे पहले I would like to have pleasure of unveiling my own book with the family. So I would like to invite my parents. आप आ जाइए फटाफट, जल्दी आ जाओ इतना टाइम नहीं है. आ भी जाओ जीजू, आ भी जाओ फटाफट. अभिषेक भाई फटाफट आ भी जाओ, जल्दी आओ. सरस शर्ट पे आ भी जाओ, जल्दी आ भी जाओ. અને एक्चुअली AMA के मेंबर्स है,
but more than AMA members, they've contributed a lot in my life in terms of my learning, in terms of my development, in terms of they've been guiding me. तो मुकुंद भाई, उन्मेश भाई, बंकिम भाई क्यांक बैठा था, गायब થઈ ગયા થોડા, જલ્દી આવી જાઓ, અમીરી આવી જાઓ ફટાફટ, આવી જાઓ, આવી જાઓ, આવી જાઓ, પટેલ સાહેબ ક્યાં ગયા, જલ્દી આવો ને ભાઈ. ઓકે, થોડું ચીફ ગેસ્ટ વધારે થઈ ગયા છે મારે, સો ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીઝ દે હેવ બીન મેની. અનિશો આવી જાઓ, મારી ખાસ નવી ફ્રેન્ડ પાછળ જે નવી બની છે, જલ્દી આવી જાય, જલ્દી આવી જાય, જલ્દી આવી જાય. ઓકે, ગ્રેટ. સો નેહા, સ્પેશિયલ ઇન્વિટેશન, જલ્દી. સો આજે મારી બુકનું અનવેલિંગ છે, પણ થેન્ક યુ વેરી મચ તમે બધા આના માટે, એટલે એન્ડિંગ માટે થેન્ક યુ નથી કહેતો, તમે આવ્યા એના માટે થેન્ક યુ છે. બાકી તો ઘણું બધું આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે. ઉન્મેશ ભાઈ, ઓકે, બંકિમ ભાઈ ક્યાં ગયા? બંકિમ ભાઈ તમે દેખાય નહીં, જલ્દી જલ્દી બધા રાહ જોવે છે, જલ્દી આવી જાઓ, જલ્દી આવી જાઓ. ઓકે, હેમંત ઉપર આવી જાઓ, મેં ઉપર આવી જાઓ. રેખા ભાઈ જલ્દી આવો, હેમંત એક બુક ઓર કરવાની છે. અભિષેક ભાઈ તમે આ બાજુ આવી જાઓ, દેખાતા નથી. ઓકે, ક્યાં છે? જલ્દી આવજો, જલ્દી જલ્દી જલ્દી. Okay, so all of us together will open the book. Thank you very much, everyone. Slide करके निकालिए मोशन शो. खाली नीचे देखो. खाली slide करने बाद में cover नीचे काटो. થેન્ક યુ. તમે બધા આવે એના માટે બી થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. હજી મારી જોડે કેટલી જગ્યા છે વોક કરવા માટે, એ મને ખાલી એકવાર બતાવી દેજો ને.
हाँ कॉलर में चाबी दो ना. ઓકે અવાજ આવી રહ્યો છે છેલ્લે સુધી, રાઈટ? ગ્રેટ. ગ્રાફોલોજી એઝ અ સબ્જેક્ટ આપણને કેટલાને ખબર છે કે ગ્રાફોલોજી શું છે? ઓકે સર, યસ સર. શું નામ આપનું? ભૌમિકભાઈ. હાજી, વોટ ડુ યુ સજેસ્ટ? Basically, it's about understanding, analyzing handwriting. રાઈટ. handwriting ના કોડ વનોડ જે હોય એ પછી માણસની પર્સનાલિટી, વ્યક્તિત્વ રાઈટ રાઈટ. ક્યાં કાઢી શકાય એવું મને ખ્યાલ છે. સુપર સુપર, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, બીજું કોઈ જેમને ખ્યાલ હોય ગ્રાફોલોજી? યસ સર. ગ્રાફોલોજી મતલબ જે રીતે આપણું ECG હોય છે, જે બ્રેનનો ECG છે, ઓહ વેરી નાઇસ. મતલબ એના પરથી પર્સનાલિટી જો તમે એના જે કર્વ્સ જે પર્સનલી જે હેન્ડરાઇટિંગ લેટર્સમાં જે રૂટ્સ આવે છે કે લોઅર એના બધી પર્સનાલિટી એનાલિસિસ કરી શકાય છે ને ઘણા લોકો એના બધી એસ્ટ્રોલોજી પણ કરે છે. ઓહ વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. બીજું કોઈ? વિલ ટેક લાસ્ટ રિસ્પોન્સ. એનીબડી? ઓકે, સો થોડુંક આપણે ગ્રાફોલોજીને આપણે સમજી લઈએ. ગ્રાફોલોજી એઝ અ સબ્જેક્ટ. ઓકે, કોઈ એવું જેમને ગુજરાતી નથી સમજમાં આવતું? ओके, सो वेलकम टू हिंदी. तो बेसिकली ग्राफोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट जो है उसको हम एक बार समझ लेते हैं. ग्राफोलॉजी जैसे हमारे दो दोस्तों ने यहाँ पे बताया, वेरी ट्रू. ग्राफोलॉजी ये चीज होती है जो आपके हैंडराइटिंग है, आपके हैंडराइटिंग के थ्रू आपका पर्सनालिटी असेसमेंट जो होता है वो है. सो दैट इज वाई इसको बोला जाता है असेसमेंट. इट इज नॉट अ प्रेडिक्शन. मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है. देखो वैसे तो पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने जो कल डिसीजंस लिए या जैसा मैं कल था उसके बेसिस पे मेरा प्रेजेंट है, जैसा मैं आज हूं उसके बेसिस पे मेरा फ्यूचर है. सो टेक्निकली स्पीकिंग माय प्रेजेंट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ माय यस्टरडे एंड माय फ्यूचर इज गोइंग टू बी बाय प्रोडक्ट ऑफ माय टुडे. जो मैं आज डिसीजंस लूंगा उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो मेरा कल होगा. बट एनीवेज, जैसे मैंने बताया कि ये एनालिसिस है, प्रेडिक्शन साइंस नहीं है. सो दैट इज फर्स्ट थिंग. अब ग्राफोलॉजी में क्या है? तो ग्राफोलॉजी में अलग अलग एलिमेंट से एक सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज अ जेस्टाल्ट मेथड, जिसके ऊपर ये पूरी बुक लिखी गई है. तो जैसा आज तक जितने लोगों को भी आप पूछोगे, ग्राफोलॉजी जो है सबके पर्सपेक्टिव से ग्राफोलॉजी वो एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही है. आई एग्री. बट जेस्टाल्ट मेथड सिर्फ एक ऐसा मेथड है ग्राफोलॉजी में जो आप कोई भी लैंग्वेज, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो. चाहे आप लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो, जो कि मेजोरिटी मोर देन 80% लैंग्वेज जिसमें हम लेफ्ट टू राइट स्क्रिप्चर्स है हमारे, या फिर आपकी राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्चर्स है. इररिस्पेक्टिव आप हर एक वो लैंग्वेज को एनालाइज कर सकते हो, उसमें जो लिखा है उसको एनालाइज कर सकते हो. इसका मतलब ये भी हुआ कि आपने जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है. आप चाहे कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, नॉट नेसेसरी वी नो एवरी लैंग्वेज, तो आपने जो लिखा है उससे लेना देना नहीं है. आपने जैसे लिखा है उससे मतलब बनता है. सो ग्राफोलॉजी एज अ साइंस, एज अ सूडो साइंस जो है, उसमें आप जैसे लिखते हो उस हिसाब से आपका असेसमेंट एनालाइजेशन होता है. सो दैट इज ग्राफोलॉजी. अब ग्राफोलॉजी में अगर देखते हैं तो एक होता है विच इज ओवरऑल लुकिंग एट द पैटर्न्स, जस्ट द पैटर्न्स, द वे यू राइट. सेकेंड होता है हर एक कैरेक्टर को डाइसेक्ट किया जाता है. दैट इज अ ट्रेड मेथड. हर एक कैरेक्टर जो होता है, आप जो भी लिखते हो उन सब चीजों को डाइसेक्ट किया जाता है. ए आपने लिखा है, कैसे लिखा है, कैपिटल कैसे लिखा है, स्मॉल कैसे लिखा है,
कैपिटल जो आपने लिखा है उसमें आपने स्लैंट्स कैसे दिए हैं, कर्व्स कैसे, आपके जैसे हमारे सर ने बताया कि कर्व्स हम जो उसमें देते हैं उसके हिसाब से उसको एनालाइज किया जाता है। जो भी आप स्ट्रोक्स या तो जो स्लैंट्स होता है, स्ट्रेट है, फॉरवर्ड स्लैंट है, बैकवर्ड स्लैंट है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें एसेस होती है। हर एक छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो छोटा सा स्पेस हो दो लेटर्स के बीच में, चाहे दो वर्ड्स के बीच का स्पेस हो, हर एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है। सो दिस इज ग्राफोलॉजी। तो एक हो गया आपका ग्राफोलॉजी जिसमें जेस्टाल्ट मेथड, जैसे आप लिखते हैं ओवरऑल उस स्क्रिप्ट को देखा जाता है, पेज को देखा जाता है। सेकेंड हो गया विच इज अजय भैया आवाज की काफी रहो। सेकेंड जो होता है वो ट्रेड मेथड है। तो ट्रेड मेथड है, उसमें हर एक लेटर को आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड जो होता है वो सिग्नेचर एनालिसिस होता है। तो आपकी जो सिग्नेचर है उसको एनालाइज किया जाता है। एक फटाफट काम करता है। आज अगर हम आए, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, राइट? आप हर एक लोग 1.5 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली। इट शुड बी वर्थ वाइल, यस नो? यस। अ क्विक रिक्वेस्ट, टेक 2 मिनट्स। आपके पास एक पेज तो है ही, उसके पीछे की साइड ब्लैंक है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट? किसी को आपको दिखाना नहीं है, ना मुझे दिखाना है, ना बाजू वाले को दिखाना है। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर योर रेफरेंस। राइट, स्क्रिबल समथिंग इन इंग्लिश, एटलीस्ट 7, 8, 10 लाइन्स, और उसके नीचे आप 3 बार सिग्नेचर कीजिए अपना। कुछ भी स्क्रिबल कीजिए उसके ऊपर, कुछ भी लिखिए उसमें, और 3 बार आपको नीचे सिग्नेचर करना है। क्विकली विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स, राइट? तो ये 3 मिनट में एक बार आप लिख लीजिए, ताकि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आप अपने आप अपना हैंडराइटिंग एनालाइज कर पाएंगे एंड आपको समझ में आएगा कि जो हम बात कर रहे हैं वो कितना रिलेवेंट लग रहा है आपके खुद के हैंडराइटिंग के साथ, राइट? सो टेक अराउंड 2-3 मिनट्स जस्ट। ओह सुपर, कीप इट विद यू, थैंक यू। क्योंकि कुछ इन्विटेशंस में लिखा भी था कि अगर कुछ लिख के लाते हो तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू मैम, यू हैव सुपर। और लिखा है तो उसके नीचे 3 बार साइन कर दीजिएगा। We'll take just 1.5 minutes more. ओके ग्रेट। सो मैं आपको कुछ उसमें जो आपने कुछ लेटर्स लिखे हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा एंड आई होप हम सब एटलीस्ट खुद को तो जानते हैं थोड़ा थोड़ा। कई बार हम जब ग्राफ एनालिसिस करते हैं सो आई हैव अ क्लिनिक, राइट, जहाँ पे काउंसलिंग एंड थेरेपी करते हैं हम। तो थेरेपी टाइम पे कई बार कुछ आते हैं क्लाइंट्स, राइट, और उनका जो पर्सपेक्टिव होता है खुद के बारे में वो पूरा अलग होता है।
एंड 2-3 दिन के बाद वो बोलते हैं हाँ सर वो तो ऐसा था बट वो जो बट होता है ना उसमें सब आंसर छिपे होते हैं. सो बट के अंदर सब समझ जाना है कि क्या एक्चुअली हुआ. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम खुद के बारे में एक्सेप्ट करना नहीं चाहते. कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद के बारे में एक्सेप्ट करना नहीं चाहते. एंड वर्स्ट थिंग, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद के बारे में जानते नहीं हैं. सो ग्राफोथेरेपी एक अलग टॉपिक है, ग्राफोलॉजी एक अलग टॉपिक है. ग्राफोलॉजी इज एनालिसिस, ग्राफोथेरेपी ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम उसी चीज़ को थेरेप्यूटिकली हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं. अब लोगों को लगता है यार क्या बकवास कर रहे हो, हैंड राइटिंग चेंज करने से थोड़ी ना हम चेंज होंगे. साइकोलॉजी में अगर आप देखो या फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो जब हम बॉडी लैंग्वेज सिखाते हैं तब हम ये कहते हैं कि अगर आप फिजिकल पोस्चर अगर चेंज करते हो तो मेंटल स्टेट चेंज होता है. यस नो, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट, राइट? मतलब कि फिजिकल पोस्चर चेंज करने से मेंटल पोस्चर चेंज होता है, मेंटल थॉट प्रोसेस. विज़ अगर मैं थॉट प्रोसेस चेंज करता हूं क्या मेरा फिजिकल पोस्चर चेंज होगा? यस नो, करेक्ट. सो विच मीन्स दे बोथ इंटरेक्ट, दे आर विज़. अगर मैं मेरा मेंटल स्टेट चेंज करता हूं मेरा फिजिकल स्टेट चेंज होगा. उसी को तो हम बोलते हैं ना माइंड पावर. बट पहले तो हमें यही नहीं समझ में आया माइंड होता क्या है, तो उसके ऊपर अभी हम नहीं जाते, आज वो टॉपिक नहीं है हमारे लिए. बट दैट इज लिटिल डिफरेंट. दूसरा, फिजिकल पोस्चर चेंज करो, आपका माइंडसेट चेंज होगा. इसका एक सिंपल प्रूफ, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मैं जो भी चीज बताऊंगा उसका लॉजिक दूंगा. अगर हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करते होते हैं उसमें मैं हमेशा ये बताता हूं, आई विल गिव यू लॉजिक्स. ऐसा नहीं है कि मैंने बोला इसलिए मान लो. आई विल गिव यू लॉजिक्स फॉर एवरी पॉसिबल थिंग. इसका लॉजिक मैं बताता हूं और प्रूफ के साथ बताता हूं. मान लो कभी आपको थोड़ा लो इन कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, मूड नहीं आ रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, राइट? शक्तिमान कितनों ने देखा है? शक्तिमान एटलीस्ट एक एपिसोड या उसका पोस्टर देखा हो हम सबने, राइट? बहुत सारों ने शक्तिमान देखा ना. व्हाट वाज दिस पोस्टर? लाइक दिस, राइट? जस्ट स्टैंड फॉर 1 minute, दैट्स इट. Just 1 minute. Doable? Standing like this for 1 minute will shift your level of confidence. So मतलब ये है कि अगर मैं मेरा फिजिकल पोस्चर चेंज करता हूं, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा साइकोलॉजी चेंज होता है. द वे आई थिंक, द वे आई बिलीव, द वे आई बिहेव, इट चेंजेस. कितना टाइम लगा? 1 minute? Standing like this? Hardly a minute. So अंडरस्टैंड कितनी सारी चीजें चेंज होती है. द सेम वे आपके जो ग्राफोलॉजिकल पैटर्न्स है, जो लिखने की पैटर्न्स है. ओके, आई विल गिव यू वन मोर प्रूफ, राइट? जैसे मैंने बताया ना कि आप लिखने से, जो ग्राफोथेरेपी है, आप लिखने से आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है. आई विल गिव यू क्विक प्रूफ. ले सकता हूं? ओके, आप सबको लोगों के पास, मतलब मैक्सिमम सबके पास पेन्स भी है और पेपर्स तो सबके पास है. बता रहा हूं नंद बाबा, लेट थी गया. Okay, so now what you need to do is, ECG सबने देखा हुआ है कैसा होता है, राइट? आपको सिर्फ इतना लिखना है, अपना नाम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज वेदांग. सो आई विल राइट माई नेम इज वेदांग. बट सुनो सुनो सुनो, बट कैसे लिखना है? जो आपके स्ट्रोक्स है ना, एकदम नजदीक में. ECG में कैसा नजदीक नजदीक होता है, राइट? एकदम नजदीक नजदीक. सो जस्ट राइट लाइक दिस, my name. So they have to be very close and shifting up down up down up down. एक भी ECG में कभी कर्व आता है? नहीं आता है ना. दे एंगुलर. एंगुलर हैंड राइटिंग में सिर्फ आपका नाम लिखो एक बार. जैसे मैंने बताया माई नेम इज वेदांग दवे, राइट? तो इतना एक बार नाम लिखो फटाफट. लेट्स डू दैट, राइट? इट विल टेक क्विक 20 seconds. जस्ट राइट. बट एंगुलर में, जैसे मैंने आपको बताया, एंगुलर में तो पूरा जिगजैग आना चाहिए. हो रहा है? हाँ हाँ, वो तो ऑब्वियस, दैट्स राइट, दैट्स राइट.
ओके, कितनों को लगता है कि आपने एक्चुअली एंगुलर तरीके से लिखा है और उसमें कोई भी कर्व नहीं है, विदाउट अ कर्व? ओके, अ फ्रेंड ऑफ अस, एनीबडी एल्स जिन्होंने एंगुलरली लिखा हो उसको? ओके, देयर आर फ्यू मोर, जस्ट शो मी वंस. ओके, सुपर, नाइस. इन्होंने बहुत अच्छे से परफेक्ट ईसीजी निकाला हुआ है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट ईसीजी. ओह, वेरी नाइस, वेरी मच क्लोजेस्ट. यू कैन टेक दोस चेयर्स, विल गेट फ्यू मोर. ओके, ठीक है, फिर भी बेहतर है, बट कर्व्स थोड़े ज्यादा है उसमें. ओके, सुपर. दिस इज ऑल्सो क्लोजेस्ट ईसीजी. अब एक यहां पे आ जाइए, आप एक यहां पे आ जाइए. आगे भी जगह है, प्लीज कम ओवर. ये नाइस ईसीजी, सुपर, थैंक यू. सो ओके, गुड. ओके, कर्व्स फिर भी थोड़े, बट स्टिल इट इज बेटर. और दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ईसीजी. अगर आप दूर से देखते हो इसको, यू विल जस्ट सी एंगल्स. आपको इसमें भी इट विल बी लिटिल हार्डर टू रीड what exactly is written, but still it looks like an ECG. Okay, thank you. ये आपका था. Oh, superb. Give it to me. Okay, this is one more ECG, right? If you look at it closely, this one more such, जहाँ पे technically क्या लिखा है वो थोड़ा सा difficult है समझने में, but still you will be able to see those zigzag ones. Thank you. अब मुझे ये बताइए जिनका भी Oh my God. This is genuinely epic, right? तो अब ये जो 2-3 हमारे पास एपिक है, मुझे सिर्फ ये पूछना है, how easy was it to write like this? You have to think. Yes. सर ने एकदम परफेक्ट ईसीजी बनाया है. वाई का नीचे का जो स्लैंट है वो भी ईसीजी में जा रहा है. ओके, गुड, थैंक यू. सो टेक्निकली स्पीकिंग, जब आप एंगुलर राइटिंग करते हो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस लगता है. इट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग. कुछ लोग बोलेंगे अरे सर वो तो कुछ भी नया करो स्ट्रेसफुल लगता है ना. मान लेते हैं एंगुलर राइटिंग ज्यादा नहीं, आप सिर्फ एक पेज लिख के दिखाओ कंसिस्टेंटली बैठ के, सिर्फ एक पेज, वो भी छोटा इतना सा. यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट विदाउट स्ट्रेस. तो करने में तो लेफ्ट साइड से ब्रश करते हैं ना, सो इट इज न्यू थिंग, योर न्यू न्यूरॉन्स गेट जनरेटेड, वो पूरी अलग चीज है. बट जब भी लेफ्ट हाथ से लिखोगे वो भी इजी रहेगा. इवन इफ यू ट्राई राइटिंग विथ योर लेफ्ट हैंड, मतलब ऑपोजिट हैंड, अगर राइटी हो तो लेफ्ट से, लेफ्टी हो तो राइट से, दैट विल बी इजियर देन राइटिंग एंगुलरली. सर व्हाट डू यू सजेस्ट? यस, नो? आपने जो एंगुलरली लिखा, राइट, दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो जहां पे भी एंगुलर राइटिंग आते हैं, जिस किसी की भी आप देखते हो, आई एम नॉट सेइंग लिटरली अ वार्निंग, बट दैट पर्सन नीड्स असिस्टेंस. तो आज का सेशन इसलिए कि हम कई बार हम खुद को, हमारे आसपास वालों को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे दोस्तों को, घर पे बच्चों को, क्या हम उनको बिना कोई सवाल पूछे समझ सकते हैं? यस, दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड देम. मेरे क्लिनिक में जितने भी आते हैं मैं सबको बोलता हूं मैं होमवर्क दूंगा, और मेरा पहला होमवर्क कुछ न कुछ लिखने के लिए होता है उनको. इट इज नॉट टू सी व्हाट दे राइट, बट इट इज टू सी हाउ दे राइट. वो कैसे लिखते हैं वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जिस हिसाब से उनका लिखना होता है उस हिसाब से पता चलता है कि उनका माइंडसेट कैसा है. और फिर जब सवाल पूछने शुरू करते हैं तो उनको लगता है हाँ ये, मतलब हाँ ऐसा कुछ तो है. तो फिर वो जो 2 लाइन के बीच में छुपाने का ट्राई करता है ना, वो धीरे धीरे अनवेल होना शुरू होता है. सो दैट इज द फन ऑफ ग्राफोलॉजी, कि आप बिना कोई एक भी सवाल किए बिना जस्ट जो लिखा है उससे आपको समझ में आता है कि वो इंसान क्या सोचता है, कैसे सोचता है. ये मैंने बता दिया आप किस हिसाब से लिखते हो. सो विच इज एंगुलर राइटिंग. सेकेंड,
जहां भी हमारे कई सारे दोस्तों ने ट्राई किया, बट उसमें फिर भी क्या था, कर्व्स आते थे, एंगुलर हो ही नहीं पाता था, विच मीन्स यू गो स्मूथ इन योर लाइफ, यू डू नॉट स्टे ओवर स्ट्रेस्ड, राइट? सो दिस आर योर कर्व्ड राइटिंग्स. अभी आप लोगों ने कहीं ना कहीं एल लिखा होगा, जस्ट इफ यू हैव एनी एल्स इन योर राइटिंग्स. अब एल का जो लूप बनता है ना, एल का जो लूप बनता है, वो लूप जितना पतला है, देखो किसका मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट अपना हैंड राइटिंग एक बार देख लो कि अगर ये ज्यादा पतला है, उसमें मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में छोटा मोटा टेंशन बना रहता है, कहीं ना कहीं लाइफ में छोटा मोटा टेंशन बना रहता है. द बिगर द लूप, जो एल का जो लूप है वो थोड़ा अगर बड़ा है, रीजनेबल साइज का है, विच मीन्स यू आर रिलैक्स इन योर लाइफ, यू डोंट टेक टेंशन, वेरी गुड थिंग, यू आर वेरी स्पॉन्टेनियस. ऐसे लोगों को जब भी आप देखोगे हाजिर जवाबी होंगे, उनके पास कुछ भी आपने सवाल पूछा जवाब हाजिर होगा. उनको अगर कुछ आप प्रॉब्लम देते हो, सही गलत अलग बात है, दे विल हैव सॉल्यूशंस टू दैट, राइट? सो जहां भी आपका एल का लूप बड़ा है, वहां पे यू बिकम मोर स्पॉन्टेनियस. जहां पे लूप बड़ा होता है ना, वहां पे एक और फायदा होता है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, खुद के आप इमोशंस हैं वो आप बता पाते हो, खुद के मन में क्या चल रहा है वो बता. कुछ लोग होते हैं ना जो किसी को नहीं बताते, कई बार तो ऐसा होता है खुद को भी नहीं बताते, है ना? कुछ प्रॉब्लम चल रही है, खुद को भी नहीं बताते. बट द वंस हु हैव लिटिल बिगर लूप, वो लोग अपनी इमोशंस इजीली शेयर कर पाएंगे. दे आर रीजनेबली एक्सप्रेसिव. एक और लेटर देखते हैं. ई लिखा होगा कहीं पे हमने, और स्पेशली जब आपके बारे में लिखने को बोला तो नेम के लिए यू वुड हैव रिटन ई. अब का ई का जो राउंड है, जस्ट चेक दैट राउंड, हाउ स्मॉल और बिग द राउंड इज. जितना नैरो है वो ये दिखाता है दैट द पर्सन इज वेरी स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग. उनको ज्यादातर चीजों में संतोष होता ही नहीं. अगर उनको किसी ने बोला ना कि यार चल आज मैं पार्टी देता हूं, दोस्त ने बोला पार्टी दे, ना 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 जाना यार, तू कब पार्टी देगा. अरे यार बंदा बोल रहा है पार्टी दे रहा, ना 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 तू पार्टी आज तक कभी दी है क्या तूने. दे विल बी स्केप्टिक अबाउट एवरी पॉसिबल थिंग इन द लाइफ. एंड ये लोगों जो स्केप्टिक्स होते हैं, अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल से भी देखते हो तो देर आर स्केप्टिक्स विच इज पर्सनालिटी. इन लोगों को इमोशनल चीज समझ में नहीं आती. अगेन क्या ये बुरा है? माय आंसर इज नो. देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. द पॉइंट इज इनको आप उस हिसाब के, अगर आप प्रोफेशनली कहीं पे अटैच हो, कनेक्टेड हो, तो उस हिसाब के प्रोफेशन में इनको आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट? ऐसे बंदे कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा? वो वेरी स्केप्टिक, हु डोंट जस्ट स्वेड बाय इमोशंस. कैसा प्रोफेशन अच्छा रहेगा? लॉयर, ऑडिट्स, वेरी गुड. लॉयर, ऑडिट, फाइनेंस, सेल्स, पीआर. बट पीआर में क्या आपको इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहना पड़ेगा. बट लॉयर, यस यस, लॉयर एकदम लॉजिकल. सॉरी क्या बताया आपने? ऑडिट, करेक्ट. ऑडिट में यू हैव टू हैव ब्लैक एंड व्हाइट, यू कांट हैव दैट ग्रे लाइन इन बिटवीन. फिनांस में रख दो इनको, ना खुद कभी गफला करेंगे ना किसी को करने देंगे ये लोग. सो ये अच्छी चीज है उन लोगों के बारे में. बस प्रॉब्लम ये होता है कि जब इन लोगों को कहीं और एचआर में रख दिया, अब सोचो ये बंदे को मैंने एचआर में रख दिया, क्या हालत होगी. और एचआर में भी अगर मैंने गलती से जो इसको एचआर बीपी बना दिया, बिजनेस पार्टनर, गए बेटा आप तो. अब लंका लग गई. या तो उसकी जॉब जाएगी, उसकी जाएगी तब तक ये 6 की खा के जाएगा. सो ये लोग जो होते हैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं.
एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं और इनके साथ इमोशनल ड्रामा नहीं चलता। अब इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, लुक इनटू योर रिलेशनशिप्स। घर जाके एक बार ट्राई करना अपने पार्टनर के हैंडराइटिंग्स लेने का, या तो पुराने कोई हैंडराइटिंग्स वो एक बार देखेगा। द मोमेंट यू सी स्मॉलर लूप्स ऑफ ई, आपको समझ में आएगा हाँ भाई इसको लॉजिकल चीजें बताओ, मान जाएगा कि देखो हंसने से ये होता है, हाँ 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 हंसते हैं ना, हम बैठ के हंसते हैं, आ जाओ। ये ऐसे लोग होते हैं, बट इनको इमोशनल कनेक्ट वो थोड़ा कम रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका ई का लोब आप एक बार देख लीजिए बड़ा है थोड़ा, जिसमें एक छोटा सा गोला छोटी सी बिंदी बनती है क्लोज वाली, यू आर ओपन माइंडेड। ऐसे लोग सबके जो ओपिनियंस होते दे एक्सेप्ट द ओपिनियंस, दे एक्सेप्ट ओपिनियंस। ऐसा नहीं है कि वो करेंगे वैसा, आई एम नॉट सेइंग कि वो सबकी सुनते सबकी करते, नहीं, दे विल एक्सेप्ट द ओपिनियंस। क्या बोलना चाहता है सामने वाला, लेट मी हियर दैट, लेट मी लिसन टू दैट। दे आर जनरली लिटिल फ्लेक्सिबल। द बेस्ट थिंग अबाउट देम, ऐसे लोगों को अगर आप बोलते हो क्या चल के घूमने जाता है, बोले हाँ चलो, उसके साथ सिर्फ ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, सिर्फ ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये है कि अगर उनको आप बोलोगे एक काम करते हैं, यू नो लेट्स हैव अ मैप, अब वो बजट के हिसाब से मैप रखेंगे, बहुत कम बजट है अहमदाबाद का मैप रखेंगे, थोड़ा ज्यादा है गुजरात का, थोड़ा ज्यादा है इंडिया का, राइट, बहुत ज्यादा है तो अब्रॉड का, एंड दिल से डार्ट खेलते हैं, दिल से लेट्स प्ले डार्ट, लेट्स ब्लाइंड फोल्ड, एंड जो जगह आई वहां पे जाएंगे। ये लोग हाँ बोलेंगे आपको, और चाहे वो कश्मीर आए, चाहे कजाकिस्तान आए, चाहे केरला आए, चाहे कनाडा आए, ये लोग हाँ बोलेंगे आपको। दे विल नॉट हैव प्रॉब्लम्स, दे विल बी गुड विद दैट। सो जो बड़ा लूप होता है, दे एक्सेप्ट न्यूनेस इन द लाइफ। अब अगेन लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन नाउ, कई बार आज जो डायनामिज्म है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्ट में, मार्केट में, एवरी टाइम थिंग्स आर जिप 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 चेंजिंग। कुछ सालों पहले कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, 5G तो अभी आया नहीं है, अभी AI आ गया, एंड पीपल आर जेन्युइनली वरीड कितनी सारी जॉब्स आएगी अभी। नाउ AI जब एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन में आएगा तब क्या होगा, बट दिस पीपल विल लर्न, ये लोग सीख लेंगे, क्योंकि AI है ना, सीख लेते, उसमें क्या है, कुछ नया है, सीखेंगे, नए दौर से आगे बढ़ेंगे। दे वुड वांट टू एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, लर्न, एक्सेप्ट। अभी देखो कहीं ना कहीं आई लिखा होगा हमने, छोटा वाला, देखो एक बार, छोटा वाला आई। अब आई में दो पोर्शंस है, एक आपका स्टेम है जो डंडी बोलता है ना, एक डंडी है आपका आई में, दूसरा है उसके ऊपर का डॉट। स्मॉल, यस थैंक यू, स्मॉल आई। तो स्मॉल आई में जो बिंदी है वो से एक बार ऑब्जर्व कीजिए कहां पे है आपकी। जैसे ये मेरा आई है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, राइट, ये मेरा, ये रहा आई, जो बिंदी है ना ऊपर वाली, ये एग्जैक्ट कहां पे लोकेटेड है, जस्ट वो एक बार ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज डॉट ऑन द स्टेम रादर, राइट। अब ये अगर इससे भी ऊपर यहां पे है, पुराना एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बहुत सारों ने नहीं देखा होगा, वी हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ यंगर क्राउड एज वेल, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, नाम भी नहीं सुना होगा, उसका एक एपिसोड देख लीजिएगा, थोड़ा मजा भी आएगा, थोड़ा ऐसे जाने देंगे, बट दे आर लाइक मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हमेशा एक चीज समझो, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एक्सैजरेशन, और इंग्लिश में बहुत अच्छे से बताया, एनीथिंग इन एक्सेस इज गुड, नॉट गुड, नॉट गुड, द सेम अप्लाइज हियर, एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड।
जब तक मैंने यहां तक बिंदी रखी है दिस परफेक्ट, इसने थोड़ा सा ऊपर यहां तक रखी है, यहां पे है द पर्सन इज इमेजिनेटिव। ये लोग क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे। क्रिएटिव फील्ड वाले लोग अगर आपके आसपास है, आप देखिएगा कि ये जो बिंदी है, सबसे पहली चीज वो सर्कुलर होगी, डॉट नहीं होगा, वो गोल होगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सेकेंड, वो थोड़ा सा स्टेम से ऊपर जाएगी, दैट इज सेकेंड थिंग। बट अगर वो यहां के बदले सीधा यहां पे आ जाती है, तो वो हो जाता है आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि भाई हम तो ख्यालों में खोए रहेंगे, बाकी देखा जाएगा। ये लोग 2 सेकंड में चांद पे पहुंच जाते हैं, और कहीं पे आप देखोगे तो एकदम बंजी जंपिंग कर रहे हैं, फिर पता चला कि बिस्तर से गिरा है बंदा। सो ये ऐसे लोग होते हैं कि बंजी जंपिंग टू बिस्तर से गिरना, दे कैन क्रॉस दैट और दे कैन पास दिस जर्नी इन जस्ट अ सेकेंड। ये लोग हैं जो बहुत ही ऊपर करते हैं, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है, विच इज लाइक मोर देन 1 मिलीमीटर अबव, सॉरी विद इन 1 मिलीमीटर परफेक्ट साइज, 2 मिलीमीटर से थोड़ा सा अबव, 2 to 3 मिलीमीटर वो थोड़ा सा अबव है। उनका क्रिएटिविटी बहुत अच्छा होता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है। ये लोगों को आप ये बताओ, एडवर्टाइजिंग बनानी है, कुछ नया कैंपेन बनाना है, राइट, दे विल बी एबल टू डू इट वेरी वेल। और इनके जो थॉट प्रोसेस होंगे, दे ऑल्सो विल बी आउट ऑफ द बॉक्स। सो विच मीन्स अगर आपको आपकी टीम में कोई क्रिएटिव बंदा चाहिए, नाउ यू नो व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। ई भी देखना है, उसका आई भी देखना है। सो देयर इज नॉट वन स्टैंड अलोन थिंग, सब चीजें साथ में देखनी पड़ती है। फिर आप बोले नहीं हमने तो आई देखा था, वो तो अच्छा है, बढ़िया, बंदा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कोई नई चीज, फिर क्या फायदा। आप बोलोगे हाँ देख अभी ना ऐसा टेक्नोलॉजी निकला है जहां पे आप सिर्फ इतना लिखोगे कि अभी हम यहाँ पे बैठे थे, मैम के साथ बैठे थे, वहाँ पे बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि सर मैंने आपका प्रोफाइल मांगा तो पूरा 4 पेज का प्रोफाइल दे दिया। मैं बोला अच्छा, वो सीवी नहीं दिया, 6 पेज का बन जाता। तो मैं बोला कि तो उसको चैट जीपीटी में डालते और उसको लिखते दैट समराइज द प्रोफाइल फॉर इंट्रोडक्शन, तो 2 सेकेंड में आपको बना के दे देता। अगर ये हम जैसे कुछ थोड़े से आदि मानव है, मेरे जैसे हो सकता है ना, नहीं बट मैं कर लेता हूं, फिर भी मेरा ईग लूप बड़ा है थोड़ा, सो आई एक्सेप्ट दैट, आई लर्न दैट। बट कुछ आदि मानव होते बोले नहीं 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 ऐसा कहें, नहीं नहीं मैं तो आराम से बैठूंगा, बुक पेन लेके मैं लिखूंगा। सो वो क्रिएटिविटी भी काम की नहीं है आपकी। योर क्रिएटिविटी हैज टू बी इन लाइन विद व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट, व्हाट इज इन द सोसाइटी, व्हाट इज हैपनिंग इन द फील्ड, इन द मार्केट, इन द बिजनेस, उसके अलाइनमेंट में होना चाहिए ना। सो दैट इज योर आई डॉट। नाउ अगर आपका आई डॉट जो है वो स्टेम के पहले आता है, यहां पे मेरा स्टेम है, उसके पहले आता है अगर आपका आई डॉट, दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स दे आर ऑब्जर्व्ड टू बी प्रोकास्टिनेटर्स। अरे करीसु यार, थसे देखा जाएगा, हो जाएगा, क्या टेंशन है, अभी तो अगले वाले घर तक आग लगी, बाजू वाले घर तक तो आई नहीं है आग, एंड आफ्टर वाले वो अभी तो बाजू वाले घर का किचन ही जल रहा है, बेडरूम तक थोड़ी ना आई है, हॉल तक थोड़ी ना आई है। सो दिस पीपल विल बी लाइक दैट, उनको ज्यादा लोड नहीं चाहिए। वो टिपिकल हिंदी में बोलते हैं मस्त मौला मस्ती में आग लगे बस्ती में। परफेक्ट मैम। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं। इनका और स्वामी विवेकानंद का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जो इनकी पेंसिल लेके गए थे आज तक वापस नहीं करी, तो इनकी उनकी बनती नहीं है। तो बोलते उठो जागो ध्येय प्राप्ति सुधी चाले रहो, नहीं नहीं हम ये नहीं कह रहे, कल करे सो आज, आज करे सो अब, नहीं 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 नहीं, हम आज करे सो कल, कल करे सो परसों। अब परसों करना है तो क्या करना है, छोड़ो यार। सो लॉट ऑफ टाइम्स दे आर प्रोकास्टिनेटर। और जो मैं बता रहा हूं इन लोगों के लिए बहुत सिंपल चीज है, जस्ट डू बैंक ऑपोजिट व्हाट इज नीडेड, पुट योर आई राइट ऑन द स्टेम।
अब हम एक और एक्सक्यूज देते हैं कि सर हम तो लिखते ही कहाँ है, लिखेंगे तो ये होगा ना, पहले लिखना तो जरूरी है। हम में से कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सालों में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ वो चेकबुक के पीछे साइन करी है या कुछ फॉर्म बैंक का या लोन का है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो भी फिलअप किए हैं वही है, बाकी कुछ नहीं लिखा हमने। डायरेक्शंस पता है ना, राइट लेफ्ट, तो आपको ये भी पता होगा कि हमारा राइट लेफ्ट में पैर कितना कच्चा है कितना मजबूत है। आई स्टिल रिमेंबर आई वेंट टू चेन्नई और भाई साहब को मैंने, टैक्सी वाले थे, उनको मैंने बताया कि सर यहां से ना लेफ्ट लेना है। हाँ हाँ सर, वो बंदा राइट में चला रहा है, मैंने सर लेफ्ट लेफ्ट, हाँ सर लेफ्ट लेफ्ट, भाई साहब ने राइट ले लिया, मैं लेफ्ट बोल रहा हूं, बोले हाँ सर ये, ओ हाँ सर सॉरी लेफ्ट राइट, हाँ सर सॉरी मैंने राइट ले लिया, हम यूटर्न लेके वापस आ जाएंगे। जो डायरेक्शन का सेंस डेवलप होने में, ह्यूमन काइंड में डेवलप होने में वी पास फ्यू मिलियन ईयर्स, अराउंड 6 to 7 मिलियन ईयर्स, गूगल कर लीजिएगा थोड़ा और प्रिसाइज मिल जाएगा, बट अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन ईयर्स हुए ये डेवलप होने में, और थैंक्स टू गूगल मैप्स it is vanishing like snapping a finger. The same way, when you write, it boosts your neurological connection. जब भी आप किसी को ये देखते हो मेडिटेटिव पोज, सबसे पहला कौन सा दिमाग में आता है? मेडिटेटिव पोज बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ, राइट? सबको यही आता है, राइट? लिखते भी हम कैसे? सो अंडरस्टैंड, ये जो चीजें बनाई गई है ऐसे ही फ्लूक में नहीं बनाई गई है। हमें भी आज लगता है अरे नहीं मैं फटाफट लिख लूंगा, कंप्यूटर पे लिख लूंगा, लैपटॉप पे लिख लूंगा, इट विल बी फास्ट, इट विल बी इजियर, बट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर लूजिंग। सो दैट इज वेयर वी आर मिसिंग द बिगेस्ट पीस। अभी आई का जो डॉट है ना, जो मैंने सर्कल बताया, जो क्रिएटिव लोग हैं उनका सर्कल बनेगा, दे विल बी विजनरी, वो थोड़ी आगे की सोचेंगे, दे विल बी क्रिएटिव एज वेल एज विजनरी, बट जिनका वो जो सर्कल है, वो सर्कल ऐसे पूरा बनाने के बदले कहीं ना कहीं वो लूप ओपन रह जाता है, दे हैव चाइल्ड लाइक बिहेवियर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। यू विल फाइंड चाइल्ड लाइक बिहेवियर इन दैम। और कई बार वो क्या है बच्चों जैसी बातें करते हो, क्या बच्चों जैसा करते हो, यू विल से दैट, एंड वहीं पे कहीं ना कहीं आपको रिलेट होगा। एक बार खुद का भी आई डॉट देख लीजिएगा, सो विल बी एबल टू रिलेट। अगेन, इज इट बैड? नो, इट इज नॉट, इट जस्ट डिपेंड्स विच काइंड ऑफ प्रोफेशन यू आर इनटू। नाउ दिस काइंड ऑफ पीपल, इफ दे आर इनटू स्कूलिंग और प्री स्कूलिंग, आप सोचो कितना कनेक्ट कर पाएंगे बच्चों से। जो स्टूडेंट्स है कितना इजीली कनेक्शन बैठेगा, और जिस बंदे का फुल सर्कल बनता है, कुछ भी कर लो भाई, कनेक्शन नहीं बैठना है। द वन साइन दैट यू शुड नॉट हैव इन योर आईज, ये दिख रहा है सबको, काइंड ऑफ अ डैश काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? स्लैश डैश जो भी आप बताना चाहो इसको, कॉमा, राइट? ऐसा निशानी आई के ऊपर नहीं होना चाहिए। सो फ्रॉम आई पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग, आई के ऊपर स्लैश या डैश, इट मस्ट नॉट बी देयर। अगर वो है, you have pretty much of a self-sabotaging behavior, self-critic। मतलब इस बंदे को कितना भी अच्छा बोल लो आप, कि जैसे कि यार क्या मस्त शर्ट पहना है, क्या मस्त शर्ट, छोड़ना है यार, 5 साल पुराना शर्ट है, अभी तो पुराना होगा, यार मैंने तो पहली बार देखा, हाँ तो है तो 5 साल पुराना, पहना पहली बार मैंने। मतलब इसको हमारे जैन के में एक हमारे थे जस्सीप्रा, मतलब उनका जो भी नाम है, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, बट हम उनको जस्सीप्रा बुलाते थे। उनको कुछ भी चीज बोलो, द फर्स्ट आंसर विल बी नहीं, नो, नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है,
ही स्टैंडर्ड आंसर्स। इसके अलावा कुछ आंसर्स मैंने आज तक नहीं सुने। हमने थोड़ा ट्रिक किया, उनके घर पे उनके मतलब उनका एनिवर्सरी था, हम लोग घर पे गए, तो अब देखो हम तो थे बैचलर्स उस टाइम पे भी, तो हमने सोचा आज तो कांड करेंगे घर पे। हम सब ने 6-7 लोग थे टीम वाले, प्लान करके रखा अच्छे से, HR, सेल्स, मार्केटिंग सब थे, मजे लेने के मूड में थे पूरा। हमने बोला अरे जसी भैया सॉरी, देखो अभी सही टाइम नहीं है, बट मेरा अप्रूवल एक पेंडिंग है, वो कर दीजिएगा। अरे नहीं ऐसे नहीं, उसका दूसरे सेल्स वाले ने बोला सर मेरा बजट में से इतना है, अप्रूवल मेल आ गया होगा, देख लीजिए आप एक बार और ये कर दीजिए। 4-5 बोले और ये बच्चा तो आपका है ना? नहीं मतलब हाँ ऐसा ही। So a lot of times you'll find these people. This good bad I'll not comment, but I would suggest this is not the right thing to have in your handwriting. स्लैश नहीं होना चाहिए। टी बार के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताओ। जब आप टी लिखते हो तब हम जो बार है वो लेफ्ट टू राइट करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं? उसका बार कहां से होता है? लेफ्ट टू राइट। अगर आपका राइट टू लेफ्ट आ जाता है, नॉट अ राइट साइन, it is extremely self-sabotaging behavior. Once again the same things like it was with I, self-sabotaging, self-critic. मतलब बंदा खुद के बारे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उसको। उसके ऋतिक रोशन जैसे 8 पैक्स भी हो गए ना, तो बोले हाँ यार बट यहां पे ना ये 1 मिलीमीटर फैट ज्यादा है, उसको ऐसा मानो कि पटक पटक के मारो। So this again I'm saying this actually hinders your growth. कि कुछ भी आगे अच्छा करते हो आपको वो अच्छा नहीं लगता। So this is not the positive sign. This is the sign which you should not have. एक बार चेक कीजिए, they genuinely need help. They genuinely need help. So take care of them. एक लेटर, सिर्फ टी एक लेटर है, सिर्फ एक लेटर आपके बारे में कितनी सारी चीजें बता सकता है। जो इट टॉक्स अबाउट योर सेल्फ एस्टीम, इट टॉक्स अबाउट द वे यू लुक एट योर गोल्स, हाउ ग्राउंडेड यू आर, और वेदर यू आर ग्राउंडेड एट ऑल और नॉट। इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट हाउ प्रैक्टिकल यू आर, हाउ कंपैशनेट यू आर, the kind of goals that you have in your life, the kind of ambitions those you have. आपका टिपिकल बिहेवियर कैसा होता है? सैबोटेजिंग होता है या लिबरेटिंग बिहेवियर होता है? आप अपने पास्ट में ही जी रहे हो या एक्चुअली फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो? यहां से टी बार से ये भी पता चलता है कि ओके कुछ लोग है ना ऐसे होते हैं कि कोई तो सीरियल आती थी, मुझे याद नहीं, हमारे जमाने में, क्या नाम था वो सीरियल का? आत्मा, उसी में था। ओके तो मतलब मैंने 1-2 एपिसोड देखे इसलिए मुझे नाम याद नहीं है। ब्रो हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, उसने अरे वो बीते दिन, वो बीती वादियाँ, वो कॉलेज के दिन, वो स्कूल की गुल्ली मारना, वो कॉलेज की टपरी पे चाय पीना, ये ख्याली पुलाव में ही पके रहते हैं, ये सब पास में ही खुश होते हैं। सो अगेन अगर आप हमेशा अपने पास्ट को याद कर रहे हो, हमेशा अपने पास्ट में खुश रह रहे हो, हमेशा अपने पास्ट में लिंगर कर रहे हो, विच मीन्स आर यू हैप्पी विद द प्रेजेंट? अगर ऐसे वाले जो है वो नॉट रियली। अगर आप सिर्फ पास्ट में फंसे हुए हो, विच मीन्स यू डू नॉट अप्रिशिएट योर प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट पीपल। उनको ही कॉलेज के ही दोस्त अच्छे लगते हैं, भले जिसमें शायद कुछ अच्छा नहीं होगा, उन्होंने सिगरेट पीना सिखाया, उन्होंने बोला चलो 60 ml लेते हैं। यही लोग बोलते हैं कि चले यार मावा खाते हैं। पहली बार राजकोट गया, कजिन्स ने बोला चलो मावा खाने जाते हैं, मैं बोला हाँ चलो जाते हैं। वो पान के गल्ले पे गए, उन्होंने मंगवाया जो भी मंगवाना था, बोले तू क्या लेगा? बोला कुछ नहीं। बोले ठीक है, फिर घर पे ले लिया आपने। मैं क्यों घर पे?
मिठाई की शॉप पे नहीं जाना है? तो बोले क्यों? मैं बोला आप तो बोले थे मावा खाने जाना है। तो फिर मुझे पता चल गया ये तो एक्चुअली मेरी चॉपसी हो गई। तो ये जो लोग होते हैं ये वही बीते दिनों में रहते हैं। इनको प्रेजेंट पार्टनर चाहे कितना भी अच्छा हो या कितनी भी अच्छी हो, वो पास में ही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ योर पास। इसीलिए आपका जो टी बार है, कहाँ गया बीच में? कहीं छोटा टी है क्या कहीं पे? कुछ है? यस। सो ओके, ये रहा। सॉरी, आई शुड हैव पुट दिस ऑन साइलेंस। सो ये जो टी बार है ना, अगर कुछ नहीं समझ में आता है इसको सेंटर में रखो, इसको सेंटर में रखो। बट अगर टी बार आप यहां से करते हो और यहां तक या यहां तक भी रुकता है, दैट इज वेयर यू आर लिंगर्ड टुवर्ड्स योर पास्ट। आपकी यादें, आपकी मेमोरीज, आपकी थॉट प्रोसेस, वो सब पास्ट में है। चलो एक और क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। ओके, दूसरा, आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे जिनका एक बार इंजन शुरू होता है बोलना, फिर वो नॉन स्टॉप रहता है हम सबके कहीं ना कहीं आसपास एक आध ऐसा जन, राइट? सुपर्ब सुपर्ब। ओके, अब है ना, घर जाके उनका ओ देखिएगा आप। जो ओ है ना, जैसे ये ओ है तो ये ऊपर वाला है ना थोड़ा, ये ओपन होगा। सो समवेयर योर लूप्ड अल्फाबेट्स विल बी ओपन। ओ जो है वो ओपन होगा कहीं से। मैंने पहले सोचा था कि व्हाइट बोर्ड लगवाया, बट मैंने बोला कोई फायदा तो है नहीं, लास्ट तक तो दिखेगा नहीं व्हाइट बोर्ड। सो दैट इज वी डिडंट इवन पुट एफर्ट टू दैट। बट यस, ये जो ओ है कहीं ना कहीं ये छोटा सा उसमें गैप होगा। सो दैट इज वेयर हाउ टॉकेटिव, बिगर द गैप क्या होगा? द बिगर टॉकेटिव फ्रेंड और कोलीग और पार्टनर आई हैव। और ये जितना, ये सर, ये जो अल्फाबेट्स आपने बताए, राइट, to analyze it in the singular way, I mean, सिर्फ अल्फाबेट्स या in the sentence we have to see? वेरी गुड। सो अल्फा सेंटेंस के अंदर के अल्फाबेट्स, अच्छा आपने पूछा, राइट। सो ये जो भी आपकी लिखावट है ना, जैसे किसी को भी बोल दो कि आपके मनपसंद टॉपिक के बारे में लिखो, राइट, एनीथिंग अबाउट योर चॉइस, वो जब लिख लेते हैं नीचे 3 सिग्नेचर करवाओ, यू विल हैव अ लॉट ऑफ इनसाइट्स इन दैट। बट प्रॉब्लम ये होता है जब आई टीच ग्राफोलॉजी, बट जब कुछ सुनो तो नहीं नहीं सर हमें तो सीधा ट्रेट मेथड सीखना है, हमें तो सिर्फ अल्फाबेट सीखना है, तो फिर मेरा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। वो ना रिजिडिटी, स्ट्रेट स्टेम टी का, तो हम लेंगे नहीं वो तो नहीं होगा, पैसा मुझे ज्यादा मिलेगा बट वो नहीं होगा, बिकॉज इट हैज टू बी इन सीक्वेंस। फर्स्ट इफ यू जेन्युइनली वांट टू लर्न जेसाल्ट मेथड, उसके बाद आएगा ये ट्रेट मेथड। एनीवेज, विल कम बैक टू दिस ओ। तो ओ जितना आपका बंद है, अगर कंप्लीट बंद है और ऐसा ही सर्कल बन रहा है, आप उतना ही बोलोगे जितना जरूरत है। अगर आपको पूछा है यार अभी दिन है या रात है, क्या बोलोगे? बस दैट्स इट। अभी इसको आपको दिन बोलो, इसको आप शाम बोलो, रात बोलो, वन वर्ड आंसर। तो ऐसे जो लोग हैं, अगेन सर आपने क्या आंसर दिया था? मैं सॉरी मैं वापस भूल गया, कौन सा प्रोफेशन आपने बताया था? ऑडिट। ऐसे लोग जो है उनको ऑडिट में रखो। ऐसे लोग जो है उनको आप क्या बोलते हैं उसको, आई फॉरगॉट दैट, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स में रखो इनको। दे विल बी टू द पॉइंट। जहां पे भी आप लोगों का ऑडिट हो रहा है, जैसे इन्फोसेक ऑडिट्स होते हैं, राइट, आपके आईएसओ ऑडिट्स होते हैं, यू शुड कीप देम एज इंटरनल ऑडिटर्स ऑल्सो। क्योंकि ऑडिट में सबसे पहली चीज ये सिखाई जाती है, जितना बोला सिर्फ उतना जवाब देना है, ना एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम। लेट देम आस्क, सो पुट देम इनटू राइट प्रोफेशन। अब
हाउ मेनी ऑफ यू हैव पार्टनर्स? रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू हैव पार्टनर्स? चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो. रेज योर हैंड्स. ओके, सुपर, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. देखो जब पार्टनर की बात आती है ना, तब सब हाँ बताओ बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. Look at the smile on everyone's face. So this is where it becomes interesting. आपका के यस, थैंक यू. एग्जाम्पल, मान लो ये के कैपिटल है. ये कैपिटल के लिए है, स्मॉल के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं. कैपिटल के, तो उनको आप क्या बोलोगे लिखने के लिए? Ask him to write something about kite festival. काइट फेस्टिवल के बाय डिफॉल्ट आपको कैपिटल करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंटली भी आएगा, तो आपको अपना पता चल जाएगा. ये मत बोला कैपिटल के लिख के दिखा, वो मत करना फिर, राइट. तो हमारे जो सर ने जो क्वेश्चन पूछा, थैंक यू, आपने जो सवाल पूछा, क्योंकि ये बोला अरे ई लिख के दिखाओ, ए लिख के दिखाओ, ओ लिख के दिखाओ, टी एंड के लिख के दिखाओ, ये नहीं चाहिए. सो डिजाइन योर टॉपिक इन अ वे कि आपको जो लेटर्स चाहिए वो इसमें मिल जाएंगे. आई मीन ए टू जेड सबका एनालिसिस होता है, बट जस्ट टी इज एनालाइज 40+ वेज. सिर्फ लेटर टी, उसको 40 से ज्यादा तरीके से एनालाइज किया जा सकता है. सो इज विथ आई. तो ये जो के है, इट विल टेल यू ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट योर रिलेशनशिप. जब भी रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इश्क की बात आती है, तो एक कैरेक्टर है जिसको सबसे पहले दिमाग में आता है. जो कैरेक्टर, कॉमिक कैरेक्टर भी बोल सकते हो आप उसको, बट क्या होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, बताओ. डोंट, हाँ, कार्टून. कार्टून में एक कैरेक्टर होता है जिसको एंजल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? डोंट टेल मी. वो भाई साहब जो तीर लेके खड़े रहते हैं ना, क्यूपिड. यस, थैंक यू, थैंक यू मोगी भाई, थैंक यू हियर. तो क्यूपिड क्या करता है? मतलब तीर मारेंगे प्यार हो जाएगा. सामने वाला निकल जाएगा यार, क्या प्यार हो जाएगा. सो क्यूपिड क्या करता है? नाउ अंडरस्टैंड दिस परफेक्ट लॉजिक. कि ये रहा, ये जो सैम है ये आप हो, ये सैम है ये आप हो. अब क्यूपिड बात देखो, सामने सामने नहीं बैठते, वो थोड़ा ऊपर बैठते हैं, है ना. उनको आपके सामने पसंद नहीं है, पता नहीं मेरी शक्ल से क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ऊपर बैठता है. द पर्सन इज एट एलिवेटेड सरफेस, और वहां से मारते हैं तीर. तो यहां से तीर आया, सेंटर क्या बोलते हैं हम? दिल. यस. सो यहां से ये सेंटर में लगा, तो ये तो मुझे सामने वाले का प्यार मिला ना, मुझे भी तो प्यार करना है ना. देन आई रेसिप्रोकेट द सेम. सो दैट इज हाउ दिस के इज फॉर्म्ड. यहां से तीर होके आया, हार्ट पे लगा, and I reciprocate my emotions. So this is my Cupid. अभी जो Cupid का पूरा सिंबल साइन मैंने जो आपको बताया, अब ये स्टेम है, ये Cupid वाला एरो आया और ये मैंने सामने रेसिप्रोकेट किया, राइट. सो दिस हाउ द के आइडियली शुड बी फॉर्म. जब तक ये जो एंगल है, ये जब तक स्टेम को टच करता है, योर पार्टनर इज अफेक्शनेट, राइट. योर पार्टनर इज अफेक्शनेट, अंडरस्टैंड्स हाउ टू लव, हाउ टू गिव लव. उनको समझ में आता है कैसे प्यार करना है. उनको ये तक समझ में आता है कि मेरे पार्टनर को किस प्रकार से प्यार चाहिए. दे वुड अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ. सो दिस इज मी, this is my Cupid arrow. So this is idealistic K. अब जब ये जो है ये ऐसे आ जाता है, ये यहां से ऐसे आ जाता है डिस्टेंस, वहां पे पंगा है. अब यहां पे पंगा है. इन लोगों के लिए प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती. वो जनरली बोलते हैं ना, अरे शादी के तो इतने साल हो गए, अब तो क्या प्यार करने हैं. क्यों डॉक्टर ने मना किया? क्या प्यार करने का क्या होता है? प्यार प्यार होता है. आई मीन जाओ पानीपुरी की रेडी पे जाओ, हाथ में हाथ पकड़ के जाओ, पानीपुरी खा के आओ. व्हाट इज प्रॉब्लम इन दैट?
और ना 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 क्यों लागे, अरे कहीं खराब ना लागे भाई, शू क्यों लागे। ये ऐसे लोग हैं, ये इतना काम ले लेंगे, इतना काम ले लेंगे कि प्यार के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। फिर हाय मैं तो थक गया, काय का थक गया भाई, जबरदस्ती काम लेके, जबरदस्ती लोड लेके बोल रहे मैं थक गया या थक गई। इट्स बोथ वेज। सो इन लोगों की जिंदगी में से वो जो प्यार है ना वो दूर चला गया है। लास्ट थिंग अबाउट हैंड राइटिंग, अब आपका ये जो स्टेम है और ये जो के है उसके बीच में एक एंगल बन रहा है, सबको दिख रहा है ना एंगल, राइट? ये भाई साहब परफेक्ट टेक्निकल बंदे होते हैं, ये प्यार करने के लिए प्लानिंग करते हैं। एंड यू सी यू विल फाइंड लॉट ऑफ दोज। आई मीन आई हैव अ कपल हु आर कमिंग फॉर रिलेशनशिप थेरेपी, उसमें भी बोलते कि ये मुझे बोलता है कि हम परसों डेट के लिए जाएंगे तो ये कपड़े पहनना, हम ये खाएंगे, वहां पे ये ऑर्डर करेंगे एंड आई विल गिव यू अ रोज। अरे मत बोलना भाई तू रोज देगा, दे देना उस टाइम पे। नहीं, इसको प्लानिंग चाहिए, इसको प्लानिंग चाहिए। इसके लिए ये जो एंगल बन रहा है ना बीच में, दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस। प्यार करना इसके लिए स्ट्रेस है, एंड फॉर दिस पर्सन इट जेन्युइनली बिकम स्ट्रेस कि यार आज वापस प्यार करना पड़ेगा। दे आर लाइक दिस, वो आज मुझे वापस से आई लव यू बोलना पड़ेगा। बका रुक, मैं ना परसों तेरे को आई लव यू बोलूंगा। हाँ परसों ही तो बोला था। अरे और आप सोचो ये बंदा ऐसा है, कहां गया मेरा, मैं खुद को ले लू ना, हाँ ये मैं हूं, राइट? सोचो हस्बैंड ये है, वाइफ ये है, व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन ना। मतलब से मारकाट करनी ही बाकी है अभी, हफ्ते भर में या तो तेरा खून या तो मेरा खून। हाँ, और उससे भी डेडली, लेट्स से वाइफ इज दिस एंड हस्बैंड इज दिस। हस्बैंड बका आधा घंटा होगा तूने आई लव यू नहीं बोला, बोले कि मैंने पिछले हफ्ते बोला था, वो भी बहुत है मेरे लिए। सो now when we do relationship therapy, there are a lot of see now generation has changed, the way they think it has changed, right? कई सारे couples ऐसे आते हैं who want to do premarital counseling, and now you know where do I look first? सबसे पहले what is the communication style, how do they talk, how do they converse, that is the first thing that I look at. उनका कंपैशनेट, हाउ कंपैशनेट दे आर। पता चला एक बंदा काम पाल के रखेगा और एक बंदा प्यार पाल के रखेगा, हो चुका। फिर तो हर रोज कुछ ना कुछ टूटेगा घर में। बी वेरी कॉशियस, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत हेल्प करेगी। क्विकली सिग्नेचर के बारे में 2-3 चीजें बता देता हूं। एटलीस्ट आई विल टेल यू व्हाट नॉट टू डू, राइट? व्हाट टू डू के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। So signature and handwriting में क्या क्या फर्क है, right? That is what we'll have to understand. शिवम એ में तो थोड़ा थोड़ा 5-5 આપી દો ને એટલે અંદર અંદર વહેંચી કાઢશે એ લોકો। तो हैंडराइटिंग जो है, ओके उससे पहले सब लोग सिग्नेचर करते हैं। हाउ डिड वी डिसाइड दिस इज व्हाट आई विल साइन? कैसे डिसाइड किया हमने? एनीबॉडी? बहुत सारी बार प्रैक्टिस करके। ओके, व्हाट एल्स? ओके, हाँ ये अच्छा लगता है, वेरी गुड, दैट इज द ट्रूथ एक्चुअली। मुझे अभी भी याद है, मैंने ना गूगल किया था द क्रिएटिव सिग्नेचर्स, और फिर सोचा कि कौन सा सिग्नेचर, और जो सिग्नेचर तब कर रहा था, थैंक गॉड आई एम नॉट डूइंग इट नाउ। आई विल टेल यू व्हाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेने का ट्राई करते हैं, वो चाहे फैमिली में से हो, चाहे सेलिब्रिटीज का हो, चाहे गूगल किया हो, क्रिएटिव सिग्नेचर, यूनिक सिग्नेचर्स, यूनिक ऑटोग्राफ्स, ब्ला 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 ब्ला, एंड देन उसमें हम कुछ हमारा जोड़ते हैं और फिर बनाते हैं अदरक पुदीना वाली चाय।
मसाला चाहिए, सॉरी भूल गया हूं ना मसाला तो मैं। अब क्यों? क्योंकि उन्होंने कितने साल राज किया हमारे ऊपर? अरे अंग्रेजों ने कितने साल राज किया? तो कहीं तो बदला लेंगे हम। चाय की पथारी फेर दो, बोले जितने होते उतने परमिटेशन कॉम्बिनेशन, मसाला भी डालो ना, अजवाइन तले, थैंक गॉड उसको में वघार नहीं करते हम लोग, ना वो भी बदला लेने के लिए हम वो भी कर लेंगे। सो अगेन कमिंग बैक टू सिग्नेचर्स, हम सब परमिटेशंस ट्राई करते हैं, फिर अपना एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दैट इज हाउ वी डू आवर सिग्नेचर। तो सिग्नेचर वो कॉन्शियस एफर्ट था, हैंड राइटिंग हमारा सबकॉन्शियस एफर्ट है। सिग्नेचर इज द वे आई वांट टू शोकेस माई सेल्फ, हैंड राइटिंग इज व्हाट आई एम। फिर से, हैंड राइटिंग इज व्हाट आई एम सबकॉन्शियसली, सिग्नेचर इज द वे आई वांट टू शोकेस माई सेल्फ। क्या मैं खुद को क्या दिखाना चाहता हूं, दैट इज माई सिग्नेचर। हम यही देखते हैं सिग्नेचर अच्छी लगनी चाहिए, यस नो? हम ऐसा सोचते नहीं सबसे खराब सिग्नेचर कौन सा लगे मैं तो वही करूंगा। वी डोंट डू दैट। हम हमेशा ये सोचेंगे कौन सा सिग्नेचर अच्छा लगेगा। सो विच मीन्स आई एम डूइंग कॉन्शियस एफर्ट। जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि हम कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं, हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं हम, एंड दैट इज हाउ आई मेक अ सिग्नेचर। तो सिग्नेचर इज अ कॉन्शियस एफर्ट, हैंड राइटिंग इज योर सबकॉन्शियस एफर्ट। मतलब सिग्नेचर ये है, मैं खुद को क्या दिखाने का ट्राई करता हूं, दैट इज माई सिग्नेचर। अब फटाफट सिग्नेचर की कुछ बातें कर लेते हैं, क्या क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले गोला मत बनाओ, डोंट सर्कल। आपका फर्स्ट लेटर भी नहीं बनाना है, आपका नाम भी नहीं बनाना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पे आप सर्कल बना दो। और कई लोग बोलते हैं ना ना अब तो थोड़ी काम करे। हमारे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ जी, राइट? आप गूगल कर लेना उनकी साइन बिफोर केबीसी, साइन आफ्टर केबीसी। ही एक्चुअली चेंज हिज सिग्नेचर। भले ऑब्वियसली उन्होंने अपना ऑटोग्राफ चेंज किया है, बट ज्यादातर तो वो ऑटोग्राफ ही करते हैं ना। चेक कितने साइन करते होंगे? यू एंड आई ऑल ऑफ अस नो, राइट? वो चेक साइन करने से ज्यादा ऑटोग्राफ करते हैं। ही चेंज हिज ऑटोग्राफ एंड दैट शोड सिग्निफिकेंट शिफ्ट in the way he became successful. So first thing, don't circle your signatures. Second thing, आपका जो फर्स्ट लेटर है, नाम लिखो। सबसे पहले नाम लिखो। फर्स्ट लेटर इट हैज टू बी द बिगेस्ट। कितना? 6 से 7 गुना बड़ा होना चाहिए फर्स्ट लेटर। So if I write my name as a signature, right? So I'll write like this, V and then EDENG. So my V is the biggest one. It has to be 6 to 7 times bigger. मैं खुद को इंपॉर्टेंट नहीं दोगे तो किसको इंपॉर्टेंस दोगे जिंदगी में? फिर हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं कोई मेरी बात नहीं सुनता। तो कुछ तो ऐसा लाओ ना जब सुने। अब खुद सोचो, चींटी हम सबको पता है, कुछ लोगों ना सिग्नेचर या हैंड राइटिंग भी ऐसे होते हैं, चींटी को इंक में डुबाओ और रख दो प्लेन पेपर पे, वो जो क्रॉल करते हैं वैसा हैंड राइटिंग लगता है। मतलब जेन्युइनली कुछ लिखा भी है कि ऐसे ही बाइनरी कोड है जो समझ में नहीं आते। You will find such handwriting, you will find such signature, and you will see them. They have the lowest level of self-esteem, self-respect. थोड़ा सुनने में खराब लगेगा, उनको कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा, उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, because they have accepted this. Smallest signature, सबसे छोटे कैरेक्टर्स, ना पहला लेटर बड़ा है ना बाकी के लेटर्स बड़े हैं, एवरीथिंग इज स्मॉलेस्ट। सिग्नेचर के बाकी के लेटर्स जो है वो आपके हैंड राइटिंग के लेटर से 3 गुना बड़े होने चाहिए, और आपका फर्स्ट लेटर है वो आपके सिग्नेचर के लेटर से 6 to 7 टाइम्स बड़े होने चाहिए। हाँ, जब फॉर्म्स वगैरह साइन करते हो उसमें जो लिमिटेशन है वो अलग बात है, अदरवाइज स्टार्ट डूइंग दैट। जैसे मैंने ये पोज बताया ना, दिस पोस्चर, इट विल immediately in less than 1 minute it will bring that adrenaline rush in your body, confident feel करवाएगा ये चीज आपको। द सेम वे आपकी जैसे भी साइन है, थोड़ी उससे बड़ी साइन करके देखो एक बार, मैं ऐसा भी नहीं बोला 10 बार, एक बार यू विल फील सम शिफ्ट इन योर सेल्फ। आपको हाँ कुछ तो अलग हो रहा है और कुछ बेहतर हो रहा है।
you will feel yourself getting expanded. So that is it. One more thing you must not do in a signature, never ever cross any part of your signature. कभी भी सिग्नेचर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी हो, आगे जाके वापस क्रॉस नहीं करना है. नेवर एवर डू दैट. अगेन सेल्फ सैबोटेजिंग. यू आर डिमिनिशिंग योर ओन वैल्यू. मतलब खुद सोचो ना, खुद का नाम लिखा उसके ऊपर क्रॉस कर दे. कौन करता है ऐसा यार? हम अनजाने में करते हैं, अगर करते हैं तो नेवर डू दैट. आपके जीज वाइज जो भी आते हैं उसमें कंप्लीट द लूप. उसके जो लूप्स है ना वो कंप्लीट करो. जैसे इसमें जी का लूप बन रहा है, कंप्लीट द लूप. आधे पे मत छोड़ दो. दे आर कॉल्ड मनी बैग्स. दे आर कॉल्ड मनी बैग्स. डोंट लीव देम हाफ वे. कंप्लीट देम. जिगजैग मैंने बता दिया, कभी नहीं करना. ये गलती से भी नहीं करना है. अगर किसी में मिल रहा है, इट इज अ रेड वार्निंग. इट शोज सुसाइडल टेंडेंसीज. अगर खुद के नाम को मिटाना, अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन? वेरी सिंपल लॉजिक, राइट? आई एम जस्ट गिविंग यू लॉजिक. सो ऐसा नहीं कि वो सुसाइड कर लेंगे, बट दिस शोज द टेंडेंसी कि ऐसे ख्याल आते हैं इनको, राइट? दैट शोज द टेंडेंसी. टेक इट एज अ रेड वार्निंग. गेट हेल्प फॉर देम, राइट? दैट इज दैट. बाकी इमीडिएटली अभी कुछ मुझे याद नहीं रहा. आपके कुछ क्वेश्चन है तो बताइए. ओके, थैंक यू. सिग्नेचर जो भी आप करते हो, ensure it is somewhere between 30 to 45 degrees. That shows how ambitious you are. अगर मैं साइन करता हूं, I'll sign like this. So this is somewhere 40 degree. स्ट्रेट नहीं. अब देखो, अच्छा आपने पूछा स्ट्रेट करो तो गलत है नहीं, बुरी है नहीं. स्ट्रेट करते हो मतलब क्या है कि यू आर ओके विथ बीइंग हु यू आर, द वे यू आर. आपकी जिंदगी जैसे चल रही है ठीक है, तो उसमें कोई गलत नहीं है ना. अगर मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ लोगों को होता है उससे भी प्रॉब्लम, बट हमें नहीं होना चाहिए. द मोमेंट यू पुट इट टुवर्ड्स एन इंक्लाइंड, it shows the progressive nature that you have. It shows that you believe in growth. It shows that you want to grow. अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर 30 to 45 ही क्यों, मैं 60 डिग्री करूंगा, 50 डिग्री. मैं तो बोल रहा हूं 25 to 30 is decent है. 45 भी मत करो, इट्स ओके. अब ये सोचो, मैं जो साइन है वो यहां कर रहा हूं, दिस अराउंड 35 डिग्रीज. मैं सीधा यहां पे आ जाता हूं. अब मुझे ये लेवल का सक्सेस चाहिए. प्रेशर कहां पे पड़ेगा? चाहिए तो सही मुझे, बट उसके लिए उतना भागना पड़ेगा. डू आई हैव दैट लेवल ऑफ मेंटल कैपेसिटी? दैट इज अनदर क्वेश्चन. डू आई हैव दैट लेवल ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ? दैट इज अनदर क्वेश्चन. सो थिंक थ्रू ऑल दिस स्टफ. इसीलिए ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करो. Anywhere between 30 to 40, 25 to 30 is decent. That is a decent size. नीचे एक अंडरलाइन बना दो. अंडरलाइन इज सपोर्ट लाइन. इसको सपोर्ट लाइन हम बोलते हैं. सो कीप अ सपोर्ट लाइन. कुछ लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो सुपरमैन. फिर कभी डॉबरमैन बन गए तो क्या होगा? कभी तो हेल्प चाहिए होती है ना. वी ऑल आर स्टेइंग इन अ सोसाइटी. वी ऑल आर लिंक्ड विथ ईच अदर. मतलब सोचो, मैं अपनी बुक अनवेल करने आया, मैं बोला नहीं मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं तो ऑथर हूं, मैं तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूं, मैं एनएलपी करता हूं, मैं सब करता हूं, मुझे क्या जरूरत है आप लोगों की? तालियां कौन बजाएगा? इतना अच्छा कौन बोलेगा? हु विल पार्टिसिपेट गाइज? सो माई सोल पॉइंट इज, अलोन आई कैन गो फार, बट टुगेदर वी कैन अचीव द माउंटेन्स, वी कैन गो फारदेस्ट. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. कीप अ स्मॉल सपोर्ट लाइन. स्मॉल, बहुत फिर लंबा, मतलब यहां से बॉर्डर तक नहीं लेके जाना है, पीओके तक, राइट? अ स्मॉल सपोर्ट लाइन, वेरी नाइस. सम पॉइंट्स आफ्टर सपोर्ट लाइन. थैंक यू. एक पॉइंट रखते हो, सो दिस पर्सन विल, एक मिनट मैंने गोखा हुआ है, बताता हूं. हाँ, एक पॉइंट अगर रखते हो आप, इट मींस मैं एक काम खत्म करके फिर दूसरा काम शुरू करता हूं. सो दैट इज माई टेंडेंसी. अगर दो है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ये वाला है.
अगर 3 है तो गड़बड़ है, 2 इज डिसेंट। करेक्ट करेक्ट। तो सिग्नेचर के बाद डॉट लगाना, थैंक यू। सिग्नेचर के बाद एक डॉट गुड, 2 डॉट्स गुड, बट एक डॉट में ये भी समझो, इफ यू आर इन अ प्रोफाइल वेयर मल्टीटास्किंग इज नीडेड, 1 डॉट इज हार्मफुल। अगर आपका प्रोफाइल ही ऐसे है जहां पे आपको मल्टीटास्किंग करना है, मतलब आई हैड अ प्रोफाइल जहां पे 3 स्क्रीन होती थी सामने, अब उसमें अगर मैं एक डॉट लगा था, आप सोचो पहले ये स्क्रीन का काम खत्म होगा, फिर इस पे आऊंगा, फिर इस पे, तब तक ये दोनों की तो लंका लग गई होगी। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, यू शुड डू दैट। एक डॉट एक काम के बाद ही दूसरा काम, 2 डॉट इन कंटिन्यूएशन द पर्सन इज इन फ्लो, 3 मस्ट नॉट हैव। अंडर और आफ्टर बोथ, अंडर और आफ्टर बोथ। हाँ, यहां से कोई पूछ रही है। ओके, डोंट पुट एनी डॉट्स इन बिटवीन, थैंक यू। जहां भी आपका जो नाम है, मैं टेक योर नेम, पद्मनाभन। तो ओके, कुछ लोग है ना ऐसे होते हैं, अरे नहीं मेरा नाम तो बहुत बड़ा है, पद्मनाभन 8 अक्षर का नाम हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तभी आती है ना जब बैंक का फॉर्म होता है। बाकी करो ना, write your full name, it is about you, it is your identity, how can I shorten my identity, right? Thank you Padmanabhan ji, आपने ये एग्जांपल दिया। never put dot in between the signature। dot मतलब क्या? stop। I put a stop after me, I put a stop after my middle name, and so that shows that disconnection, that is what it is। हाँ जी, और कोई questions? yes sir। ओके, वेरी गुड। कुछ स्माइली, हार्ट, तारे, चांद, सूरज, अगर कुछ करना है इट इज ओके, इट शोज सम क्रिएटिविटी। सो देखो, कुछ लोग है ना आई के ऊपर हार्ट बनाते हैं, दे आर जनरली प्रीटी हार्ट थ्रोब, राइट? मतलब वो होता है ना दिल फेक आशिक, वो शाहरुख टाइप्स होते हैं, किरण टाइप्स, यू नो, मतलब उनको प्यार मोहब्बत की बातें जितनी भी करवा लो उनसे, दे आर ऑलवेज अप फॉर दैट। अगेन, इज इट बैड? नो, इट इज नॉट बैड, इट इज वेरी गुड, बट डिपेंड्स आप कैसा शोकेस करना चाहते हो, राइट? आर, ओके, अगर मुझे आपका आर लिखना होता, आई वुड हैव प्रॉब्ली दिस एंड आई विल राइट दिस, सो आई विल एनलार्ज द अपर लूप इन दैट। हाँ जी, हाँ जी, ओके, आई विल कम टू दैट सर। हाँ जी, अंडरलाइन। ओके, पीछे आओ ही मत ना, क्यों जिंदगी में पीछे क्यों आना है? जिंदगी में पीछे क्यों आना है? अगर मैं एक तरफ में जाता हूं, मैं 40 डिग्री साइन करता हूं, मैं बताता हूं, अगर मैं यहां साइन तो हम ऐसे ही करते हैं, तो मैं आगे तक तो पहुंच गया, तो पीछे आना क्यों है? फिर मैं ऐसे आऊं, ऐसे आऊं, ऐसे आऊं, कैसे भी नाच के आऊं, वाई टू कम बैक? अगेन लॉजिक, वापस आने का क्या जरूरत है? डोंट कम बैक, मूव फॉरवर्ड, डोंट कम बैक, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? यस, यस। पहला ये कि इट्स नॉट अबाउट वन वर्ड, इट्स ऑल अबाउट अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी। जैसे कभी आप, जैसे आपने बताया, इट्स ऑल अबाउट ओवरऑल क्या हो रहा है, किसमें सब जगह से प्रोग्राम पिक कर। करेक्ट, करेक्ट, डेफिनेटली। तो एक चीज के ऊपर से हम एनालाइज नहीं करते, इसीलिए मैंने बोला कि अरे इसने सिग्नेचर में नाम क्रॉस किया, हाँ भाई तू तो सुसाइड करेगा, मत करना है ऐसा, राइट? बेचारा नहीं करना है तो भी उसको ख्याल है कि हाँ यार आइडिया तो अच्छा है, पता चला पुलिस को फोन करेगा ये मेरे सुसाइड में ये लोग। एनीवेज, हाँ जी, यस सर, बिनीथ द सिग्नेचर, यस, परफेक्ट। उसमें डॉट लगाओ, ओम लगाओ, सर्कल लगाओ, दिस। सो सिग्नेचर क्या है? कॉन्शियस एफर्ट। आई वॉन्ट टू शोकेस माई सेल्फ लाइक दिस। देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू पुट ओम beneath my signature because I feel myself very well connected spiritually, तो मैं वो नीचे ओम करता था मैं। So what does it show? I want to showcase, because signature तो सब देखेंगे ना, so I wanted to showcase like this। जब मैंने सीखा ग्राफोलॉजी तब मुझे समझ गया मैं दिखाना चाहता हूँ, हाँ फिर लगा हाँ बात तो सही है। अगर मैं हार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, what do I want to show? I'm empathetic person, that is what I show।
अगर मैं स्माइली टॉक करता हूँ, विच मीन्स आई एम समबडी विथ whom you can connect, you could come, you could talk, you could smile with. That is what it is. Yes, ma'am. स्पेस बिटवीन नेम एंड सरनेम, जितना बड़ा स्पेस उतना बड़ा, उतना बड़ा. फर्स्ट नेम इज माई नेम, सेकेंड नेम इज लास्ट नेम. दोनों के बीच में जितना बड़ा गैप है उतना बड़ा रिलेशनशिप में गैप है. और दूसरा ये होता है, कुछ लोग है ना, ये वर्ड्स जो होता है ना, कुछ लोग वर्ड्स ऐसे लिखते हैं ना, मतलब एक ही बाजू में एक ही बाजू में एक, मतलब ये जैसे ग्राफोलॉजी लिखा है ना, ये एक वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं. ये लोग कैसे होते हैं पता है? जैसे क्या नाम है सर आपका? संजीव जी. जैसे संजीव मेरे दोस्त है. क्या संजीव, मोबाइल अच्छा है? कितने का लिया? कहां से लिया? ये किसका मैसेज आया? कौन है ये? क्या नाम है? अनलॉक कर, एक बार अनलॉक कर. कौन है ये? इसने क्यों हार्ट भेजा तेरे को? मतलब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हम दोस्त ही है, पर फिर भी कुछ लोग होता ना, ज्यादातर उनका 80% ध्यान बाजू वाले के दरवाजे पे होता है. हाँ, सीसीटीवी, थैंक यू. और वो भी फ्री वाला, वो भी फ्री वाला. तो ऐसे सीसीटीवी बहुत सारे होते हैं सोसाइटी में, घर में, ऑफिस में. हाँ, इतने बजे ब्रेक लिया, इतने बजे किया, इतने. अरे भाई अपना करना है यार, कभी खुद का भी काम कर लिया कर. दे आर वेरी इंट्रूसिव. उनके आप वर्ड्स देखोगे ना, बहुत नजदीक नजदीक लिखेंगे. दैट इज दैट. ओके, क्विकली, I know we are over time, so we'll take 1 or 2 questions last and then we'll. Okay, last one question. Yes sir. सर जो आपने स्टार्टिंग में पूरा था जी, लैंग्वेज करेक्ट. उसके बारे में से टाइम नहीं है, बट द बुक इज एग्जैक्टली ऑन दैट विदाउट knowing any letters, anything, you will be able to analyze any language. So that is what the book is about. प्रिंट एंड कर्सिव. प्रिंट नहीं लिखना चाहिए. आज स्कूल में भी बोलते हैं कर्सिव में मत लिखो. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रॉन्ग प्रैक्टिसेस. यू हैव टू राइट इन कर्सिव. कर्सिव इज बीइंग टुगेदर. कर्सिव इज बीइंग टुगेदर. और इसीलिए आप सोचो कि जहां पे भी आप प्रिंट राइटिंग लिखते हो, वहां पे आप देखोगे कि वो सबसे थोड़ा थोड़ा अलूफ अलूफ रहता है. हर एक लेटर अलग अलग वैसे. ओके, सो आई एम सॉरी, आई विल हैव टू एंड, वरना फिर मुझे भगा दिया जाएगा. उससे अच्छा I'll close this. ओके, एक काम करते, लेट्स एंड द सेशन ऑफिशियली. ओके, फिर आपके 2-4 क्वेश्चंस है दैट I'll take. Should that be okay? Okay, so thank you very much once again. आप लोग सब यहाँ पे आए, you heard me, and yes, book is right here. Just in case anybody wants to purchase, it will be available on Amazon, it will be available on Kindle. Amazon में पता नहीं कहीं तो कुछ अटका हुआ है, so pickup हुआ नहीं है, but it will be there on Amazon and Kindle both. Just in case today if somebody buys, it is at 50%. Amazon Kindle पे भी मिल जाएगा. Any which ways, I'll hand over the session to the lady. Thank you everyone once again. Okay, such interesting sessions. I think we always fall short of time, and this time also again it's been like that. But thank you, Mr. Dave. Thank you so much. It was really interesting, and thank you for being a wonderful audience. Great. Thank you everyone. Good day.